مفتی مرتضیٰ قاسمی صاحب کے بیان سننے کے لیے مفتی مرتضیٰ سہارنپوری چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ صدق اللہ ومولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اور تحقیق کہ تمہاری اللہ نے مدد کی بدر میں اور تم کمزور تھے، پھر اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جس وقت تو نے کہا مسلمانوں سے کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے یہ بات کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے، اترنے والوں سے جو اترنے والے ہیں؟ کیوں نہیں اگر تم مستقل رہو اور تقوی اختیار کرو اور وہ تمہارے اوپر ایک دم سے حملہ کر دے آ جائے تو تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں سے جو نشان لگے ہوئے ہوں گے۔ اور اس کو اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں کی خوشی کے لیے کیا ہے، اور یہ تمہارے رب نے تمہارے لیے اللہ نے دلوں کی خوشی کے لیے کیا ہے تاکہ تم کو تسلی ہو، تمہارے دل اس سے مطمئن ہو اس کے ذریعے۔ اور نہیں ہے مدد مگر صرف اللہ ہی کی طرف سے جو زبردست اور حکمتوں والا ہے۔ یہ اس لیے کہ تاکہ ان کافروں میں سے کچھ کو قطع کر دے، کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر دے، پھر وہ ناکام ہو کے لوٹ جائے۔ قرآن مقدس کی آپ حضرات الحمدللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 اور 124 اور 125 126 127 یہ چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ ان آیتوں سے پہلے غزوہ احد کا تذکرہ چل رہا تھا جس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ مسلمانوں کے پاس اگر 2 چیزیں ہوں گی، تقوی اور مستقل دین پر استقامت، تو اللہ کی مدد اترے گی۔ اور جب بھی یہ 2 چیزوں میں سے دونوں چیزیں چھوٹے گی یا ان میں سے کوئی ایک چھوٹے گی مسلمانوں سے، تبھی اللہ کی مدد رک جائے گی اور مسلمانوں کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ بس یہ خلاصہ تھا پچھلے سبق کا۔ اور اللہ رب العزت نے غزوہ احد میں، جنگ احد میں جو مسلمانوں کو ناکامی کا سامنا دیکھنا پڑا،
اس کو اللہ رب العزت غزوہ بدر کو یاد دلا کر یہ بات بتانا چاہتے ہیں. آج جو غزوہ بدر کا جو تذکرہ ہے، غزوہ بدر کے اس واقعے کو یاد دلا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری مدد پیچھے ہو چکی ہے مستقل استقامت پر اور تقوی پر. ان دونوں چیزوں کی بنیاد پر، یعنی اللہ کی مدد اور اللہ کی طرف ساری تمنائیں اور اللہ سے ڈرنا، اور جہاں اطاعت کا حکم دے دیا اس کے اوپر جمے رہنا. یہ دو چیزوں کی بنیاد پر تم لوگ جنگ بدر میں 313 تھے. آج تو تم 700 سے بھی زیادہ 700 آدمی ہو. آج تمہیں فتح نہیں ہوئی اور کل تمہیں فتح ہو گئی تھی. آج تمہارے پاس ہتھیار تھے، کل تمہارے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے. تو غزوہ بدر کا واقعہ یہ ہوا، یہ بھی آپ کے سامنے تھوڑا سا یاد دلا دیا جائے تاکہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ کس انداز میں مدد کی ہے اور ہم کس انداز میں چل رہے ہیں، ہمارا حالات کیا ہے. اس واقعے کو سن کر اپنے زندگی کو صحیح کرنا ہے. اور جن دو شرطوں کی بنیاد پر مسلمانوں کو کامیابی ملی ہے، ہمیں بھی ان دونوں چیزوں کو یاد رکھنا ہے اس واقعے سے. غزوہ بدر تقریباً مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے، یعنی 150 کلومیٹر دور کے فاصلے پر. وہاں ایک کنواں بھی ہے، اور اس جگہ کو جو ہے بدری کنواں کہتے ہیں. وہ جو کنواں ہے بدری کنواں ہے، اور اس میدان کو جنگ بدر کہا جاتا ہے. یہ رمضان المبارک کے 12 تاریخ کو سن 2 ہجری میں اور 13 مارچ 624 عیسوی کو یہ واقعہ پیش آیا. واقعہ پیش اس لیے آیا کہ قریش مکہ کی جو قوت تھی اور جو طاقت تھی اور ان کی مایاناز جو تجارت تھی، جو ملک شام ان کی تجارت تھی، سارے مکے کا کاروبار اور پورے سال کے کھانا خرچہ پورا اس تجارت کے اوپر لگا ہوا تھا. اور جنگی اصول میں سے ایک بات یہ ہے کہ دشمن کے شوکت کو توڑ دیا جائے، اس کی طاقت کو توڑ دیا جائے. جنگی اصول میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس قافلے کا پتہ معلوم ہو گیا کہ قریش مکہ کی تجارت کا ایک بہت بڑا قافلہ ملک شام سے تجارت کر کے واپس آ رہا ہے. اور جنگی اصول یاد رکھنا، جنگی اصول کیا ہے کہ دشمن کی شوکت کو توڑ دیا جائے، اس کی قوت کو توڑ دیا جائے. اور اس کی قوت اور طاقت کو توڑنا یہ ہے کہ اس کو مالی اعتبار سے کمزور کر دیا جائے. جس طرح کے آج مسلمانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے، کاروبار کوئی صحیح طریقے سے کر نہیں سکتا ہے، کریں تو چھاپا لگ جاتا ہے. مسلمانوں کو مالی اعتبار سے نہ کوئی نوکریاں ہے، نہ کوئی صحیح طریقے سے بزنس چل رہے ہیں مسلمانوں کے. تو مسلمانوں کو مالی اعتبار سے کمزور کیا جا رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور 313 صحابہ لے کر، صحابہ کو مہاجرین بھی اور انصار بھی، 80-83 آدمی مہاجرین تھے، اس کے علاوہ سارے انصار مدینہ منورہ کے لوگ تھے. اور یہ ارادہ کیا تھا؟ چھاپا مارنا اس قافلے پر جو وہ تجارت کر کے آ رہا تھا. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو نکلے، ادھر سے وہ جو قافلہ آ رہا تھا ان کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے اوپر مسلمان حملے کے ارادے سے آ رہے ہیں. کسی نے بتا دیا، منافقین تھے وہ سارے. ادھر ان کے امیر نے جو قافلہ جس راستے کو جانا تھا اس راستے کو کاٹ کر کے دوسرا راستہ جو سمندری کنارے پر جاتا ہے مکے میں، اس کنارے لے کر چلے گئے. وہ تو نکل گیا. ادھر انہوں نے اپنا ایک آدمی بھیج کر مکے میں بھیج دیا کہ مکے والوں کو اطلاع کر دو، مسلمان یعنی جو تمہاری تجارت کا سب سے بڑا قافلہ ہے اور تمہاری جو سرمایہ جس تجارت میں لگا ہوا ہے
उस तिजारत को अगर तुम्हें बचाना है, उस माल को तुम्हें अगर बचाना है, तो ऐसी सूरत में तुम उसको बचा लो। मुसलमान नहीं तो ऊपर आ गए हैं और उस काफिले के ऊपर छापा लगने वाला है। उधर कुरैश मक्का तो तैयार बैठे ही थे। वो तो ये तमन्ना थी उनकी कि हम किसी तरह से मुसलमानों को खा जाए। वो तो इस इंतजार में बैठे हुए थे। फौरन उन्होंने एकदम से 1000 नौजवान अतराफ से, गांव से, जो मक्के के कुछ बाहर से, उन्होंने एकदम से इकट्ठे कर लिए, जिनमें बड़े बड़े सरदार मक्के के, कुरैश के सरदार अबू जहल, उतबा, शेबा, उमैया, बड़े बड़े सरदार सब के सब के हम भी जाएंगे। पूरी शान के साथ ये काफिला निकला। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हो गई कि वो जो काफिला था वो तो निकल गया, लेकिन मक्का मुकर्रमा से एक बहुत बड़ा काफिला हमारे ऊपर हमले के इरादे से आ रहा है। सहाबा से मशवरा किया। सहाबा में से सबसे पहले पेश होने वाले इस लड़ाई के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया, या रसूलल्लाह, मेरी जान मेरा माल कुर्बान, मैं तैयार हूं बिल्कुल जाने के लिए आपके साथ। और सहाबे भी तैयार हो गए, सब के सब। मैं कहने का मकसद ये है कि पूरे 313 सहाबा सब के सब एकदम से तैयार हो गए, या रसूलल्लाह, हम अब वापस नहीं जाएंगे, अब हम इनके साथ मुकाबला करेंगे। मुसलमान के पास सिर्फ 100 घोड़े, कुछ घोड़े और कुछ ऊंट, 70 ऊंट और 2 घोड़े, मुश्किल से थोड़े बहुत ही असबाब थे, कुछ तलवारें थी, कोई खजूर के डंडे लेकर चल रहा था। सिर्फ छापा मारने का इरादा था, कहीं थोड़ा ही लड़ने का इरादा था, लड़ाई करने का इरादा नहीं था, सिर्फ छापा मारना था, शौकत को तोड़ना था, उनकी ताकत को। बहुत से बेचारे खाली हाथ ही थे, चलो कोई बात नहीं, हम चल रहे हैं। किसी के पास डंडा था, किसी के पास कुछ भी नहीं था, किसी के पास तलवार थी, यानी असबाब कुछ भी सामने नजर नहीं, कुछ भी ताकत नहीं थी मुसलमानों के पास सिवाय अल्लाह की ताकत के। जंग के मैदान में जब पहुंचे तो ऐसी सूरत में वहां पहुंच करके लड़ाई शुरू हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वादा हो गया कि हम, जो आज कुरान की आयत है, अल्लाह की तरफ से वादा हुआ कि मुसलमानों को तसल्ली दो, क्योंकि मुसलमानों के कुछ के दिल ऐसे थे कि वो सोच रहे थे ये 1000 आदमी, हम 313 हैं, कैसे मुकाबला होगा, ना कुछ सामान है हमारे पास। कुछ के दिल इधर उधर डगमगा रहे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने वादा कर लिया कि हम 1000 फरिश्ते भेजेंगे, जो सूरह अनफाल में आयत आएगी। शुरू में 1000 का वादा किया, यानी सामने मध्य मुकाबिल दुश्मन अगर 1000 है तो मैं 1000 भेज देंगे, अल्लाह ने वादा कर लिया। फिर उधर यहां कुरान करीम की आयत है कि 3000 का फरिश्तों का, यहां तो कह रहे हैं कि 3000 फरिश्ते भेजेंगे हम। वादा कर लिया वसल्लम से, बता दो इन मुसलमानों से कि क्या तुम्हारे लिए 3000 अगर फरिश्ते आ जाए तुम्हारे लिए काफी है? सबसे मशवरा किया, कहने लगे या रसूलल्लाह ठीक है कोई बात नहीं, 3000 जब फरिश्ते आ रहे हैं हमें फिर क्या जरूरत है हमें। और ये 3000 का वादा, फिर आगे कहा कि 5000 भेजेंगे अगर एकदम से हमला कर देंगे वो लोग आपके ऊपर, क्योंकि एकदम से हमला करने में बात ये होती है कि आप आसपास से किसी को ला भी नहीं सकते हैं। भाई एकदम से जब हमला होता है तो आदमी आसपास से किसी को इकट्ठा नहीं कर सकता है। तो फिर अल्लाह ने कहा कि अगर एकदम से वो हमला कर देंगे तो हम फिर 5000 का वादा करते हैं, 5000 फरिश्ते, जंगी फरिश्ते हम आपके पास भेज देंगे आपकी लड़ाई के लिए। कुरान करीम में इसका जिक्र है। लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई शुरू होने में मुसलमानों का पल्ला भारी था, वसल्लम तो सजदे में पड़े हुए थे, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम, ये रट लगा रखी थी, वसल्लम सजदे में पड़े हुए थे। इलाही अगर ये मुसलमानों का लश्कर थोड़ा सा, अगर आज ये खत्म हो गया, तेरा नाम लेने वाला इस जमीन पर कोई नहीं रहेगा। अगर आज हमें फतह ना हुई तो फिर ऐसी सूरत में तेरे दीन को फतह होनी आगे मुश्किल है। इस तरीके से अल्लाह के सामने अपना इस्तिगासा रखते रहे, दुआ मांगते रहे। उधर साहब अपना काम करना शुरू कर दिया। लड़ाई के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो वादा था, फरिश्ते आ गए। तो फरिश्तों की जो तादाद आई थी
सवाल ये होता है कि फरिश्ते जो आए हैं 1000 और 3000 या 5000, अजाब तो देने के लिए सिर्फ एक फरिश्ता काफी है। कौम लूत की इतनी बड़ी बस्ती, सुद्दूम और आमूड़ा को उलटने के लिए, पलटने के लिए हजरत जिब्रील का एक हाथ काफी था। हजरत जिब्रील आए थे, तफसीरों में लिखा कि हजरत जिब्रील ने सीधे उठाया हाथ से ऊपर और पटक दिया उठा करके। तो फिर ये 1000 की जरूरत क्या है? सवाल ये होता है। असल में बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो 1000 या 3000 या 5000 का जो वादा किया है, ये काफिरों को निपटाने के लिए नहीं है, उनका खत्म करना मकसद नहीं था, मुसलमानों को तसल्ली देना था। मुसलमानों क्या दिया? तसल्ली देना, क्योंकि जब तादाद ज्यादा होती है तो आदमी खुश रहता है, भाई हम तो बहुत सारे हैं, लड़ने की क्या बात है। असल मुसलमानों को वो लड़ने के लिए नहीं आए थे, वो तो सिर्फ मुसलमानों के शाना बशाना रहने के लिए साथ साथ चल रहे थे बस, ताकि मालूम होता रहे कि भाई ये भी हमारे साथ है। और खास निशान थे, उन पगड़ी बंधी हुई थी उनके। बाद रिवायतों में आया कि काली पगड़ी में थे, बाद रिवायतों में कि सुर्ख पगड़ी थी हुनैन के मैदान में, बाद कहते हैं कि सफेद आमामे में थे। बहरहाल वो एक खास वर्दी के फरिश्ते थे, उनकी एक वर्दी, जैसे हर हुकूमत में कुछ फौज ऐसी होती है जिनकी वर्दी बिल्कुल अलग होती है, इनकी वर्दी अलग होती है, वो भी लड़ाकू होते हैं, बहुत खतरनाक। अल्लाह के ये फरिश्ते सिर्फ एक खास वर्दी में थे, और ये सिर्फ जंगे बदर में ही आए हैं, उससे पहले कभी नहीं आए, ना उसके बाद अब तक कभी नहीं आए। अल्लाह की जंगी फौज है, अल्लाह की जंगी फौज है, कौन मुकाबला कर सकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये वाकया पेश आया। तो जब लड़ाई खत्म हो गई तो लड़ाई में 70 बड़े बड़े सरदार मारे गए काफिरों के, जो पूरे खूंखार होकर आए थे, आज हम ऐसा कर देंगे, आज बिल्कुल एक नहीं बच सकता है। वो सब के सब अबू जहल, उतबा, शेबा, और 70 कैद हो गए, 70 मारे गए और 70 को कैद कर लिया, और कुछ भाग गए नाकाम होकर के। तो ऐसी सूरत में जब कैद हो गए, कैद होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सबको लेकर के मदीना मनव्वरा आ गए, और मदीना मनव्वरा आने के बाद किसी को 2, किसी साहबी को 2 दे दिए, किसी को 4 दे दिए, ले भाई अपनी कब्जे में रखो, परेशान न करना। रिवायतों में लिखा, तफसीरों में लिखा कि हजरात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन उन काफिरों से खुद खजूरें खाकर पेट भर रहे थे अपना, और उनको खाना बेहतरीन ताजा बनाकर खिला रहे थे। यह है इस्लाम की शान, कि दुश्मन को भी भूखे नहीं मार रहे हैं, और खुद भूखे मर रहे हैं, फाके से खजूरें खाकर जिंदगी बसर कर रहे हैं, और उनको बेहतरीन खाना खिला रहे हैं। ऐसी सूरत में साहबा किराम से आप वसल्लम ने मशवरा किया, अब इनका क्या किया जाए। मशवरे में तय हुआ कि इनसे 4-4 हजार रुपए लेकर के, दिरहम लेकर या दीनार, इनको छोड़ दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला भी उसमें कैद थे, क्योंकि अभी तक ये मुसलमान नहीं हुए थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी इसमें, हजरत अबुल आस रजी अल्लाह तआला, ये भी उसमें कैद में थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी मसावात देखिए कितनी बराबरी करते हैं। हजरत नबी करीम वसल्लम का चचा सगा कैद है, और रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के कर्राने की, यानी उस कैद के होने की वजह से जो तकलीफ उन्हें हो रही थी, जो रात को कर्रा रहे थे, जैसे एक बूढ़ा आदमी कर्राता है, इस तरीके से जो आवाज आप वसल्लम के कानों में पड़ी, आप वसल्लम बेतहाशा रोए, बहुत रोए। और उस रोने में फिर ये मशवरा किया था कि 4 हजार रुपए लेकर इनको छोड़ दिया जाए। लेकिन ये नहीं कि ये मेरे रिश्तेदार है, मेरा चचा है, इसको बगैर पैसों के, सबसे पैसे लिए गए थे। हजरत अबुल आस, ये जो है, जो आपके दामाद थे, इनके पास घर में कुछ नहीं था।
तो इनको रिहाई के लिए आप वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ये जो है एक हार लेकर आई थी, जो उनकी अम्मी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हम सब की माँ है, हजरत खदीजुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का था वो हार। वो पेश किया। नबी करीम वसल्लम ने जैसे ही वो हार देखा, फौरन हजरत खदीजुल कुबरा रज़ी अल्लाह की याद आ गई और आंखों से आंसू आ गए। सहाबा से कहा कि अगर मैं इनको, कि ये इनकी माँ की निशानी है, मैं इनको अगर बगैर हार के ही दिया कर दूं, तुम्हारी क्या राय है? यानी ये नहीं कि अपनी राय नहीं चला रहे हैं, सहाबा से मशवरा हो रहा है। सहाबा ने कहा रसूलुल्लाह जैसा आप चाहे दे दो इनका हार, इनको वापस, इनको भी छोड़ दो। बहरहाल हजरत अबुल आस रजी अल्लाह ताला फिर ये एक बार और पकड़े गए हैं, तिजारत में गए होते, फिर एक बार पकड़े गए, फिर इनको रिहा कर दिया गया। बहरहाल फिर इन्होंने दूसरी मर्तबा जा करके जिनका माल था मक्के के इनके ऊपर, उन सब को वापस करके मदीना मनव्वरा आकर के फिर ये मुसलमान हो गए थे, जो वसल्लम के दामाद थे। बहरहाल इस वाक़ये से इबरत ये पकड़नी है जो कुरान करीम की आयत के तर्जुमे से मालूम होगा। ये जहन में रखे पूरा वाक़या और फिर सुने। वलक़द नसरकुमुल्लाह, और तहकीक के तुम्हारी मदद की अल्लाह ने, बी बदरिन, बदर में, यानी तुम जंगे ओहद में जो तुम्हें ये शिकस्त हुई है, अरे तुम्हारी तो इससे पहले मुसलमानों बदर में तुम्हारी फतह हुई है, और तुम आज ज्यादा है, कल तुम कम थे, लेकिन तुमने वो असबाब नहीं जाने किस वजह से तुमको फतह मिली थी, वो याद दिला रहे हैं अल्लाह ताला। वान तुम अजिल्ला, और तुम कमजोर थे बदर में, ना तुम्हारे पास हथियार थे, ना तुम्हारे पास ताकत थी, ना तुम्हारे पास असबाब यानी हुजूम था, और दुश्मन पूरा तैयारी के साथ आया हुआ था। फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, बस अल्लाह से डरो ताकि तुम अल्लाह का एहसान मानो। यानी तुमने जंगे ओहद में अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ तुमने अपने दिल में नहीं रखा जब तुमने वो जगह छोड़ी। अगर तुम्हें अल्लाह का खौफ होता कि मेरे नबी ने यहां मुझे खड़ा होने के लिए क्या, तो फिर कभी ऐसा ना होता। इस्तक़ूलु लिल मुमिनीना लन यक्फ़ियकुम, जंग बदर में क्या हुआ, जब तूने कहा लिल मुमिनीन, मुसलमानों से, यानी ए पैगंबर इन मुसलमानों से कहो ये बात, जब तूने कहा मुसलमानों से अलन यक्फ़ियकुम, क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है, अयुमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिम मिनल मलाइका, ये कि तुम्हारी मदद करे तुम्हारा रब 3000 फरिश्तों से, मुनजलीन जो उतरने वाले हैं। अब यहां सूरह अनफाल में 1000 का जिक्र शुरू में, 1000 फरिश्तों का, और यहां 3000 का, ये क्यों इस तरीके से? वो भी बात सही है, ये भी बात सही है। किस लिए? जब शुरू में 1000 फरिश्ते आए, उसके बाद 1000 का वादा किया, उसके बाद जब 1000 का वादा किया तो उधर जबर बिन जाबिर, एक मुहारबी मुशरिक, उसने वादा कर लिया इन काफिरों से कि मैं अपना लश्कर लेकर आ रहा हूं, यानी 1000 से इनसे कहा कि मैं भी लेकर आ रहा हूं, तुम घबराना नहीं। तो जब इसने कहा कि मैं भी लेकर आ रहा हूं, तो अल्लाह ने फिर वादा किया हम 3000 भेजेंगे। 1000 से काम नहीं चलेगा, वो लेकर आ रहा तो हमारे भी तो पास है। तो शुरू में वादा 1000 का, उसके बाद 3000 का। कब? जब उसने कहा कि मैं भी लेकर आ रहा हूं अपना लश्कर, तुम घबराना नहीं और तुम्हारी मदद में मैं लड़ूंगा तुम्हारी तरफ से। तो फिर अल्लाह ने कहा हम 3000 उतारेंगे, ला तू। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला के सामने कुछ नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला असल मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं। यहां काफिरों के साथ लड़ना नहीं है और काफिरों को खत्म करना मकसद नहीं था, नहीं तो अल्लाह का अजाब तो बगैर फरिश्तों के भी खत्म कर सका। जमीन को कह निकल जा, सारे निकल जाती नहीं, क्या जरूरत थी इतना कि भाई तुम लड़ो। असल बात यह थी कि मुसलमानों को खुश करना था और काफिरों को मुसलमानों की मजहब इस्लाम की तरफ रुजू करना था, या मुसलमानों को जो तकलीफ पहुंचा रहे थे वो अपने आप को उन्हें रोकना था। असल बात यह थी। फरमाया बला इन तस्बीर तत्तकू, क्यों नहीं, अगर तुम मुस्तकिल रहोगे, अल्लाह कह रहे हैं अगर तुम सब्र करोगे, मुस्तकिल रहोगे, यानी जो तुम्हें हुक्म दिया गया अगर तुम वहां डटे रहे, वह तत्तकू, और अल्लाह का खौफ रखा, वह यातुकुम मिन फौरिहिम हादा युमदिदकुम, और तुम्हारे ऊपर अचानक उन्होंने एकदम हमला कर दिया आ गए,
तो फिर तुम्हारा रब मदद करेगा, रब्बुकुम बिखमसती आलाफिम मिनल मलाइकती मुसव्विमीन, 5000 फरिश्तों से। खमसा के माना 5, आलाफ मैंने 1000 और मलाइका मैंने मलाइका फरिश्ते, 5000 फरिश्तों से फिर तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह ये वादा भी कर लिया। मुसव्विमीन जो, और लेकिन 5000 की भेजने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ 3000 ही आए थे, 5000 की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि एकदम से हमला हुआ ही नहीं था। एकदम से हमला नहीं हुआ था, एकदम हमला होता तो अल्लाह ने वादा कर लिया हम 5000 भेजेंगे लेकिन तुम्हें पीछे भागना नहीं है, डटकर लड़ना है। मुसव्विमीन, मुसव्विमीन के माना निशान लगे हुए। क्या मतलब? वो एक खास वर्दी में फरिश्ते आए थे, उनके अमामे भी अलग थे और फरिश्तों के, और उनकी वर्दी भी अलग थी, सब अलग थी। और सहाबा ने उनको जंग बदर में देखा भी है। हज़रत मुफस्सिर लिखते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने और बहुत सारे सहाबा ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, बहुत सारे सहाबा ने फरिश्तों की आवाज भी सुनी है, उनको देखा भी है। हजरत जिब्रील कह रहे थे अकदम हुजूम, अकदम हुजूम, इस तरीके से उनके अल्फाज थे गालिबन। और ये हजरत साहबा इकराम रिज़वान अजमईन ने सुने हैं अपने कानों से। अल्लाह की मदद उतरी है, उन सब ने देखा है। और कुरान करीम की सूरह अनफाल में तो जिक्र ये है कि साहबा इकराम सिर्फ तलवार उठाते थे, फौरन गर्दन नीचे मिलती, काफिरों की गर्दन फौरन नीचे किसने काट दी। इस तरीके से उन्होंने हमले भी किए हैं, ऐसी बात नहीं। आगे फरमाया वमा जअलहु अल्लाहु इल्ला बुशरा। असल जो खुलासा है इस पूरे जंग बदर का खुलासा अब इस आयत में आ रहा है। वमा जअलहु अल्लाहु इल्ला बुशरा, कि इसको अल्लाह ने तुम्हारे दिलों की खुशी के लिए किया था। ये 3000, 5000, 1000 जो वादा हो रहा है, ये सिर्फ किस लिए? तुम्हारे दिल खुश रहे। वलितत्मइन्ना कुलूबुकुम भी, ताकि तुम्हारे दिलों को तसल्ली हो कि नहीं हम थोड़े नहीं, हम बहुत। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, लेकिन ये बात जान लो कि हकीकी मदद तो अल्लाह ही की तरफ से। फरिश्तों के हाथ में मदद नहीं है, मदद जो है वो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के कब्जे में। अल्लाह चाहते तो बगैर फरिश्तों के भी उनको खत्म कर देते। लेकिन फिर क्या होता अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को ना भेजते, तो फिर क्या होता? चलो अल्लाह का अजाब ही उनको मगलूब करना था, तो हो सकता था वो सारे मर जाते और उनमें से बाद में आके मुसलमान भी लोग। तो उनको सारों को खत्म करना मकसद नहीं था। जो उनमें कांटे थे, जो उनमें फोड़े बने हुए थे, मुसलमानों के लिए जख्म थे, उन जख्म का ऑपरेशन होना जरूरी था, नहीं तो सारों को हलाक कर दे, सबको लेकर डूब जाते। इसलिए उनका ऑपरेशन करना पड़ा। आगे फरमाया वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अजीजिल हकीम, नहीं है मदद मगर सिर्फ अल्लाह की तरफ से, अजीज जो जबरदस्त है, हकीम जो हिकमतों वाला है। इस सारे वाकये में उसकी हिकमत यह थी, आगे जो बयान की जा रही है, लियक़ता तरफ़म मिनल लज़ीना कफ़रू, कि ताकि कुछ को उनमें से कता कर दिया जाए, कुछ को उनमें से जलील कर दिया जाए, और कुछ उनमें से नाकाम होकर भाग जाए। और काम तीनों हुए, 70 कत्ल हो गए, 70 जलील होकर कैद हो गए, और बाकी भाग गए। हुआ नहीं ऐसे? ये मकसद था अल्लाह का, हिकमत ये थी अल्लाह रब्बुल इज्जत की, ताकि उनको पता लग जाए कि मजहब इस्लाम क्या चीज है, अल्लाह क्या चीज है, और अल्लाह का दीन क्या चीज है। उनको ये बात मालूम हो जाए। और ये जिस चीजों पर हम आज मूर्तियों, पत्थर और हुबुल और लात और मनात और उज़्ज़ा जो कोई हमने सब खुदा बना रखे हैं, ये इनकी कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ बताना मकसद ये था। और पूरी दुनिया को मकसद, आज तक कयामत तक ये वाकया सब लोगों को झंझोड़ कर रख रहा है कि लात और मनात वाले कुएं में पड़े हुए थे, 70 के 70 जंगी जो बदर के पास एक कुआं था। और बुखारी शरीफ में हमारे उस्ताद ने बताया, जब ये वाकया चल रहा था, जब ये आयत थी उसमें, तो उन्होंने बताया कि आप वसल्लम ने जब वो उन सारे 70 जो कत्ल हो गए, तो आप वसल्लम ने कहा इनकी टांग पकड़ पकड़ करके इनमें कुएं में धक्का दो, इनको सबको कुएं में डलवा दिया। और फिर हजरत उमर रजी अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह को लेकर के उस कुएं की तरफ जा रहे हैं। तो बुखारी के अल्फाज ये हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ने आप वसल्लम को पकड़ा, या रसूलल्लाह रास्ता इधर नहीं, उधर है रास्ता। और आप वसल्लम जा रहे थे कुएं पे, फिर कुएं के पास चले गए।
कुएं के पास जाकर के बाकायदा आप वसल्लम ने उनको कहा, बताओ को किसको कामयाबी मिली, कौन कामयाब हुआ, तुम्हें मैंने पहले समझाया था। आप वसल्लम ने तरह तरह के अल्फाज उनको कहे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह कहने लगे, या रसूलल्लाह ये सुनने हैं। आप वसल्लम ने फरमाया, उमर तेरे से ज्यादा सुनने हैं, मेरी बात को तेरे से ज्यादा सुनने हैं। आप वसल्लम ने बाकायदा उस कुएं पर जाकर के उन सबको ललकार कर कहा कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैं तुम्हें समझाता रहा, आज तुम्हें इस नाकामी का सामना ना करना पड़ता अगर तुम मेरी बात पहले मान लेते। और बताओ किसका खुदा काम आया। तो इस वाक़े से खबर ये है, सारे दुनिया के जो आज मजहब इस्लाम के अलावा मजहब है, उन सारे मजहबों को चैलेंज है इस वाक़े से, कि जो अपने आप को कह रहे थे कि नहीं हम ऐसा कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। मजहब इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ता। उसको फरमाया, लियक़ता तरफ़ मिनल लदीना कफ़रू, ताकि कता कर दे एक जमात उनमें से जो काफिर थे, औ यकबिदहुम, और या उनको जलील कर दे, फ़यनक़लिबू ख़ाइबीन, ये हिकमत थी जंग बदर की, या फिर वो नाकाम होकर लौट जाए। और तीनों काम हुए। कब हुए? जब मुसलमान मुस्तकिल रहे, भागे नहीं एक भी, और जब आप वसल्लम के हुक्मों के मुताबिक डटे रहे, फर्मा बरदारी करते रहे, अल्लाह का खौफ दिल में रहा, तो फिर मुसलमान कामयाब हुए। आज ना हमारे दिल में, ना तो हमारे दिल में अल्लाह का खौफ है, ना हम सही तरीकों से अल्लाह के नबी के तरीकों पर जिंदगी गुजर कर रहे हैं, बसर कर रहे हैं, ना हम अल्लाह के हुक्मों को आज अदा कर पा रहे हैं। फिर कहा अल्लाह की मदद आ गई। अल्लाह ने तो वादा कर लिया कि हम 5000 3000 फरिश्तों के, ये कयामत तक के लिए, सिर्फ जंग बदर वालों के लिए नहीं था, कयामत तक मुसलमानों के लिए है। लेकिन शर्त लगा दी, मुस्तकिल दीन पर डटे रहो, जो काम दीन का कर रहे हो करते रहो, जो अमाल तुम्हें दिए गए हैं उन अमाल पर मजबूत हो जाओ, और अल्लाह का खौफ दिल में रखो, अपने आप को कुछ ना समझो, सिर्फ अल्लाह की मदद को सब कुछ समझो। इंशाअल्लाह कयामत तक मुसलमानों की मदद होगी। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के अंदर भी इस्तिकामत